اور ان سے باتیں کی اور کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں ڈرو مت۔ پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی۔ اور اسی واقعہ کو جب ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پترس مسیح خداوند کو جب دیکھتا ہے اور کہتا ہے اگر تو مسیح ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ مسیح خداوند اس کو حکم دیتے ہیں کہ آ۔ جیسے ہی وہ کشتی سے نکلتا ہے اور چلنا شروع کرتا ہے، چلتے چلتے اس کشتی سے نکلنے کے بعد اور مسیح خداوند اور کشتی کے درمیان ایک فاصلے پر وہ چلا جاتا ہے، تو جب دیکھتا ہے کہ میں تو پانی پر چل رہا ہوں، اور ذہن میں اس کے دل میں شک آتا ہے کہ شاید اب میں ڈوب جاؤں۔ جیسے ہی اس کے دل میں شیطان گھر کرتا ہے اور اس کے دل میں شک آتا ہے تو وہ اسی وقت پانی کے اندر ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن مسیح خداوند اس سے کہتے ہیں کہ اے کام اتقاد، تو نے کیوں اپنے دل میں شک کیا کہ تو ڈوب جائے گا؟ خداوند یسوع مسیح نے اسے اس کے ایمان کو دیکھ کر اس کو جھڑکا اور پھر اس کو تھام دیا۔ جیسا ہم نے ورس میں پڑھا کہ ہمیں اپنے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جھکو۔ خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں غلامی کے جوے سے آزاد کیا۔ اور لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے۔ آپ کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو آپ پہاڑ سے کہہ دے سمندر میں جا گر تو وہ سمندر میں جا گرے گا۔ لیکن سب سے جو پاورفل بات ہے کہ اس بڑے شخص نے اپنے دل میں شک کیا اور وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ لیکن ان والدین کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے فکر کی کہ مسیح خداوند ان پر صرف ہاتھ ہی رکھ دے تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو جب شاگرد ڈانٹ رہے ہیں تو مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ بچوں کو مت روکو، ان کو میرے پاس آنے دو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی، آپ جیسوں ہی کی ہے۔ لیکن بچوں کو دنیا میں معصوم جانا جاتا ہے، لیکن وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ملک کے لیے، قوم کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے فخر کا سبب ٹھہرتے ہیں۔ کب؟ جب وہ بائبل کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر وہ بائبل کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو پھر ان کی زندگیوں میں وہ تمام وعدے جو خدا نے کیے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے دور ہٹیں گے تو پھر ہم دنیا کی ان فکر و تردد میں رہتے ہوئے کبھی بھی ترقی اور روحانی ترقی نہیں کر سکتے۔ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے گئے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ کبھی بھی اپنے دل میں نفرت نہیں رکھنی۔ اور یہ گلتیوں 5 باب میں وہی ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہی یہ لکھا ہوا ہے۔ پہلا کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، ہمیں غلامی سے آزاد کیا ہے، ہمیں گناہوں کی منڈی سے مسیح خداوند نے اپنے جان کا کفارہ دے کر، اپنے خون اور جان اور بدن کا کفارہ دے کر مسیح خداوند نے ہمیں مول لیا اور ہمیں آزاد کروایا۔ اب اگر ہم دوبارہ غلامی کے جوبے میں جتنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری مرضی ہے۔
पाक कलाम में लिखा है कि उसने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। और कैसे आज़ाद किया है? अपना बेशकीमत लहू देकर। हम अगले दिनों में गुड फ्राइडे की इबादत होगी और गुड फ्राइडे की इबादत के साथ साथ आगे ईस्टर की सेलिब्रेशन होती है कि मसीह खुदावन ने मुबारक जुमे वाले दिन अपनी जान का कफारा दिया और पूरी दुनिया के गुनाह उसने अपने ऊपर लाद दिए। और खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। और मसीह खुदावन ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सामने देखो बेटा, मसीह खुदावन ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत पाक कलाम में अपने कलाम को और बच्चों को के लिए दिखाई है। और इस कदर दिखाई कि इतने बड़े मजमे में होते हुए भी मसीह खुदावन ने उन बच्चों पर नज़र की कि वो बच्चों के वालिदैन मेरे पास उनको लाना चाहते हैं। आज आप लोगों के लिए अदारे के असातिज़ा आपको तालीम देते हैं, रूहानी तालीम देते हैं, जिस्मानी तालीम देते हैं, और आप अगर उन बातों को सुनकर उन पर अमल करें तो आपके लिए खुदा के वादों के दरवाज़े खुल जाएंगे और आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली आ जाएगी। और ऐसी तब्दीली आएगी कि आपको खुदा के वो वादे के फल आपकी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए। जब आप तालीम पाते हैं, आपके अंदर मोहब्बत का फल, खुशी का फल, इत्मीनान का फल, तहम्मुल का फल, मेहरबानी का फल, नेकी का फल, ईमानदारी का फल, इल्म का फल, परहेजगारी का फल, और ऐसे कामों की कोई शरीयत में मुखालफत नहीं करती। अपने अंदर मोहब्बत को लाएं, परहेजगारी को लाएं, इल्म को लाएं। ये वो बातें हैं जिस पे पूरी दुनिया में अब तक अगर दुनिया कायम है तो ऐसे लोगों की वजह से। कुछ लोग जो मोहब्बत से भरे हैं, कुछ लोग जो इत्मीनान से भरे हैं, कुछ लोग जो परहेजगारी से भरे हैं, कुछ लोग जो तहम्मुल से भरे हैं। और आप भी अपने अंदर तहम्मुल लेकर आए, सवरा पाना लेकर आए। छोटी छोटी बातों की शिकायत सारा दिन जो है ना आपकी, कभी ऊपर से आती हैं, कभी नीचे से आती हैं शिकायतें। कभी क्लास में ही टीचर को तंग किया जा रहा है और असातिज़ा परेशान होते हैं कि अब इनको क्या करें। तो अपने अंदर तहम्मुल को लाएं, अपने अंदर हिल्म को लेकर आएं, परहेजगारी को लेकर आएं, मोहब्बत कायम करें, एक दूसरे के जान के दुश्मन ना बने। क्योंकि इब्लीस ये सारी बातें आपके अंदर, झगड़े की रूह आपके अंदर वो डाल देता है, हसद की रूह, शिद्दत की रूह, गुस्से की रूह, तो फिरके की रूह। लेकिन इन सब का हल जो है वो मोहब्बत है। याद रखिए कि जब आपके अंदर एक गुस्सा निकल रहा होता है, और गुस्सा इस कदर निकल रहा होता है कि दिल करता है मैं सामने वाले के मुंह पर थप्पड़ दे मारूं, तो आपको उसी वक्त पहचानने की ज़रूरत है कि ये बात मेरे दिमाग के अंदर इब्लीस डाल रहा है, शैतान मुझे उकसा रहा है। आज से आप अपने आप की जजमेंट करना शुरू करें कि मसीह खुदावंद ने कितने पावरफुल अल्फाज कहे कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। अब आसमान की बादशाही के आप वारिस हो और कहने वाला मसीह खुदावंद को, तो इब्लीस को ये बात पसंद आएगी? इब्लीस को ये बात पसंद आएगी? नहीं। बताओ ऊंची आवाज में। इब्लीस कभी नहीं चाहेगा कि ये खुदा की बादशाही ले जाए। इसीलिए इब्लीस आपको आपके दिमाग में घुसता है और आपसे लड़ाई करवाता है, आपके दिमाग में ऐसे ख्यालात डालता है कि जिससे आप मजबूर होते हैं किसी को मारने के लिए। और जब आप नाफरमानी करें या वालिदैन का हुक्म ना माने, तो वालिदैन
घर में 2 बच्चे हों, एक नाफरमान हो और एक फरमाबरदार, तो वालिदैन किसको ज़्यादा प्यार करेगा? निर्मल बताओ ऊंची आवाज़ में। फरमाबरदार को। और जो झगड़ालू बच्चा होगा उसको क्या करेगा? उसको मुंह ही नहीं लगाएगा, उसको मुंह ही नहीं लगाएगा, लेकिन दिल में वो अफसोस करेगा कि ये भी मेरा बेटा है, ये भी मेरी बेटी है, लेकिन उससे वो मोहब्बत नहीं वो करेगा। ये जो मोहब्बत मसीह खुदावंद ने बताई कि आसमान की बादशाही आती है। आसमान की बादशाही में अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने अंदर मोहब्बत को लेके आना, खुशी को लेके आना। जो वालिदैन काम कहें वो खुशी खुशी से करें, असातिज़ा जो काम करें वो खुशी खुशी से करें। और मोहब्बत को लेके आना है, क्लास के अंदर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर आसमान की बादशाही में जाना, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही, अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप फिर अबलीस के फरजंद बन जाएंगे। अबलीस के फरजंद का मतलब ये शैतान दा पुत्र है, ये शैतान दा पुत्र है। तो हम खुदा के चुने हुए लोग हैं और मसीह खुदावंद ने बच्चों के लिए बड़े पावरफुल अल्फाज कहे। और अगर आप चाहते हैं कि वो बरकत आपके ऊपर ठहरी रहे और जब आप बड़े हों तो आप बहुत सी रूहों को जीतने का सबब ठहरे, तो आज से ये फैसला करें, क्लास में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गली में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये वो बातें हैं, अपनी जजमेंट आपने खुद करनी है कि ये काम अबलीस मेरे अंदर दाखिल हो चुका है, अबलीस मेरे दिमाग के अंदर दाखिल हो चुका है जो मुझसे गलत काम करवा रहा है। तो उसी वक्त अबलीस को छिड़कें और कहें कि ऐ शैतान दूर हो, ऐ शैतान दूर हो। और खुदा से दुआ करें कि ऐ खुदा मुझे कुव्वत दे, ऐ खुदा, ऐ खुदा और अबलीस से कहें कि ऐ शैतान दूर हो, ऐ शैतान दूर हो। तो आपके अंदर फौरन से पहले वो गुस्सा, वो नफरत वो खत्म हो जाए। ठीक है, बात को समझ आई? आपका जो ईमान है आपके लिए खुदा के वादों के दरवाजे खोलता है, और आपका जो सब्र है उस वक्त तक खुदा के वादों के दरवाजे खुले रहते हैं जब तक वो वादे पूरे नहीं होते आपके सब्र के साथ। ये नहीं कि आपने कह दिया कि ऐ खुदा मुझे कुव्वत दे, और अबलीस से कह दिया शैतान दूर हो, तो वो 2 मरतबा कह दिया तो वो दूर नहीं हुआ। ये कह के आपने फिर खामोशी से बैठ जाना है। फिर क्या करना है? खामोशी से बैठ जाना है और बाप बेटा और रूह कुद्दुस करके एक गिलास पानी पीना है, और फिर सब कुछ आपसे दूर हो जाएगी, नफरत दूर हो जाएगी, हसद दूर हो जाएगा, और आप फिर क्लास में आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है? अबलीस को अपने अंदर काम करने नहीं देना। अबलीस आपके दिमाग में घुस जाता है। ये आज से आपको मैंने एक कायदा बताया है कि आप किस तरह से अबलीस पर हावी हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। आपकी छोटी छोटी लड़ाई झगड़े जो है वालिदैन तक पहुंच जाते हैं, फिर वालिदैन इधर आकर टाइम हमारा भी डिस्टर्ब करते हैं और आपकी पढ़ाई का भी खर्च होता है। ठीक है? खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और अपने इम्तिहानात के लिए खुदा से दुआ करें कि ऐ खुदा हमारे इम्तिहानात में हमारी बड़ी मदद हिफाजत करना, हम जो कुछ पढ़े हमारे जहनों में ज़ेन नशीन हो। खुदा से दुआ करें कि ऐ खुदा आज के पाक कलाम से जो हमने सीखा वो हमारी ज़िंदगियों में बाइसे बरकत हो,
खुदा से दुआ करें कि ऐ खुदा हमें इब्लीस के उन तमाम हथियारों से महफूज रख। खुदा से दुआ करें कि ऐ खुदा हमारी ज़िंदगियाँ तेरे जलाल के लिए ही वक्फ रहें। अदारे के लिए दुआ करें कि ऐ खुदा अदारे की तमाम मुश्किलात के लिए हम दुआ करते हैं, उसको अपने फजल वाला हाथ बढ़ाकर दूर कर। अदारे के लिए बहाली की दुआ करें कि ऐ खुदा ACTS अदारे के मुश्किलात को दूर कर, यहाँ बहाली आए तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से। कादर मुतलिक कमाल रहीम बाप, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है, यहोवा पाक खुदा तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक लहू की उस सलीब के नीचे, उस बहती धारा के नीचे इन नन्ही मुन्नी जानों को लेकर आते हैं। यहोवा पाक खुदा तेरा बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह फरमाता कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। यहोवा पाक खुदा इस फ्राइडे की इबादत में हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि जब ये बच्चे तेरे पाक कलाम को सुनते हैं, तब अल्फाज खुदा मैं तेरा खादम होते हुए दुआ करता हूँ। तो इस पाक कलाम के वसीला से इनकी ज़िंदगियाँ तब्दील, इस पाक कलाम के वसीला से इस अदारे से बहुत से तेरे सूरमा खादम निकले। इस पाक कलाम के वसीला से बहुत से इस अदारे से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रबुल फाज खुदा और बड़े बड़े अदारों में खिदमत करने के लिए तेरे ये नन्हे मुन्ने बच्चों को तेरे पास ले गया, इनको अक्ल दनाई और फहम से भर दिया। यहोवा पाक खुदा अदारा एक्स की उन तमाम रकावटों के लिए, उन तमाम मुश्किलात के लिए मैं तेरा खादम होते हुए दुआ करता हूँ कि रब्बुल फाज खुदा उनको रिमूव कर दे। तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं कि तमाम मुश्किलात तेरी तरफ से रब्बुल फाज खुदा बहाली के दिन आए, और ऐसी बहाली के दिन आए कि यहोवा पाक खुदा इस अदारे में एक मरतबा फिर वही ताज़गी के दिन हों, और यहोवा पाक खुदा उन बंद दरवाज़ों को मैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से क्लेम करता हूँ कि खुल जाए। रब्बुल फाज खुदा हर उस रुकावट के लिए, हर उस शख्स के लिए दुआ करते हैं कि जो रब्बुल फाज को इन मुश्किलात का सबब बना है, यहोवा पाक खुदा उनकी ज़िंदगियों को भी तब्दील करे। उनकी ज़िंदगियों में रब्बुल फाज खुदा इब्लीस ने जो घर कर रखा है, उस घर को रब्बुल फाज खुदा मैं तेरा खादम होते हुए कहता हूँ। आने वाले दिनों में बच्चों के इम्तिहानात के लिए दुआ करते हैं, इनके जहनों को खोल, जो कुछ पढ़े लिखे तेरी मर्जी के मुताबिक हो। और रब्बुल फाज खुदा जब तुमरा इम्तिहान में बैठे तो रब्बुल फाज खुदा ये अपनी मदद आपके तहत अपने अपने को करने अदारे के साथ ज़ाकिर तेरे हजूर में लेके आते हैं। इन पर रब्बुल फाज खुदा तेरा करम का बादल हमेशा कायम रहे और तेरी इलाही बरक़ात इनके घरानों पर नाज़िल होती रही। अदारे के प्रिंसिपल के लिए भी रब्बुल फाज खुदा दुआ करते हैं, बेटे एलिज़र के लिए दुआ करते हैं कि रब्बुल फाज खुदा तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से वो जल्द हील हो, और रब्बुल फाज खुदा एक बड़ी गवाही का सबब ठहरे, क्योंकि तू अपने लोगों की दुआओं को सुनने की कुदरत रखता है। यहोवा पाक खुदा हमारा इस वक्त का झुक जाना तुझे पसंद आए, ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से। आए हमारे बाप जो आसमान में है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी है।
हमारे रूह की बुनियाद फरमा भी हमारे कसूर माफ फरमा, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत, कलीसिया पाकिस्तान के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ, इस अदारे और इस जमात के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से।